Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read another topic, that is agriculture development from the second chapter, 5-year plans in India, goals and achievement. We have already done all the objectives and now it was necessary to implement all the objectives in 5-year plan. First, agriculture sector. During the colonial rule of British government rule, there was neither any growth nor equity in agriculture sector. We have already seen that. Now, at the time of independence, the situation of agriculture sector was, first, 75% of the people were engaged in agriculture. So, it was decided to take agriculture sector as in first 5-year plan. Why? Because majority of the people were engaged in agriculture sector. Now, secondly, we have already seen like land tenure system. Intermediaries, zamindar, and here tiller of the soil, tiller of land or soil, and there was one more person, that was British government. We have already seen the land tenure system. Like zamindars used to exploit tiller of the soil and used to take rent or lagan from them and was given to British government. We have already seen this land tenure system. 75% of people were engaged in agriculture and there was less productivity due to many reasons. You can say the reason like low rainfall. Low rainfall means if good rainfall implies good production, or if there's a lack in monsoon, does not give good production, or you say there was lack of irrigation facilities, permanent irrigation facilities, or you can say lack of technology. Many reasons were there. A wedge between tiller of the soil and owner of the soil, then scattered land. We've already done all this thing. This, what are we reading is, during the independence, what were the features of our agriculture. Now, if we see more, okay, these were the features of agriculture at the time of independence. So, there were no equity here, no growth. So, in order to bring growth and equity, that we have read as an objective of 5-year plan. So, in order to bring growth and equity in the agriculture sector, we decided or to promote growth and equity, we decided to have land reform. हमें लगा कि हमें लैंड को रिफॉर्म कर देना चाहिए, कुछ न्यू अडॉप्ट करना चाहिए. लैंड रिफॉर्म. अब लैंड रिफॉर्म दो भागों में था. वन वाज टर्म्ड एज abolition of intermediaries, and second was sealing of land. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि लैंड इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, इसलिए हमने प्रायोरिटी दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्स्ट 5-year प्लान में.
फिर हमने लैंड टेन्योर सिस्टम भी पढ़ा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जमींदार एंड टीलर ऑफ द सॉइल थे, जमींदार एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट बोथ यूज्ड टू एक्सप्लॉयट द टीलर ऑफ द सॉइल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हमारे यहाँ लेस प्रोडक्टिविटी होती थी ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजन। प्रोडक्शन क्यों हम कह सकते हैं, परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन नहीं था, रेनफॉल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, और टेक्नोलॉजी नहीं थी, और यू कैन आल्सो से ये सारी चीज़ों के कारण वी यूज टू इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम यूएसए। इन सबको हमने देखा और हमने ये पाया कि यहाँ कहीं भी इक्विटी नहीं आ रही थी, जो हमारे 5 ईयर प्लान में हमने डिसाइड किया था। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर एग्रीकल्चर में हमें इक्विटी लाने के लिए कुछ नया करना था। वो नया था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में 2 चीजें आती हैं, एक होता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, दूसरा होता है सीलिंग ऑफ लैंड। अब लैंड रिफॉर्म क्या था? लैंड रिफॉर्म का यूजुअली मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होता है? इसका मतलब है जो पहले जमींदार के पास लैंड थी और टिलर ऑफ द सॉइल उसमें खेती करते थे, कल्टीवेट करते थे और उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, अब जमींदारों को बीच में से हटा दिया गया एंड डायरेक्टली जो लैंड था और उसको जो लैंड था वो टिलर ऑफ द सॉइल, एक्चुअली टिलर ऑफ द सॉइल को दिया, टिलर ऑफ द लैंड को दिया गया, एंड दिया गया मतलब दे वर नाउ द ओनर ऑफ द लैंड। अब वो लैंड ओनर बन गए। क्यों उन्हें दिया गया? क्योंकि जो भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती थी, जो भी इंसेंटिव्स वर गिवन बाय द गवर्नमेंट वर डायरेक्टली passed or directly went to tiller of the soil, tiller of land। जो भी इंसेंटिव्स दिया जाता था वो डायरेक्ट किसके पास आने लगा? वो डायरेक्टली टिलर ऑफ द लैंड के पास आने लगा। हमने देखा नियर अबाउट 200 lakhs ऑफ टिलर केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट। कितने सारे टिलर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट के, क्योंकि वो ओनर हो गए और उन्हें इंसेंटिव्स डायरेक्टली मिलने लगा। दे स्टार्टेड शोइंग द इंटरेस्ट इन देयर लैंड। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगे अपने लैंड में। जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, ऑफ कोर्स कल्टीवेशन भी ज्यादा हो गया, कल्टीवेशन ज्यादा हो गया, हम मान के चलते हैं ग्रोथ भी ज्यादा हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज हटा दी, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इतना रिफॉर्म करने के बाद स्टिल वी वर नॉट एबल टू ब्रिंग इक्विटी। उसका क्या कारण था? कई जमींदार जो थे जिनके पास बहुत बड़ी लैंड थी, जो लार्जर लैंड के ओनर्स थे, उन्होंने दे स्टार्टेड मेकिंग बेनिफिट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। उन्होंने लेजिस्लेचर कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स का मतलब होता है डिफेक्ट्स इन द लॉ। कुछ डिफेक्ट्स थे लॉ में जिसका फायदा उठाकर जो ओनर्स थे जिनके पास ज्यादा लैंड थी वो बरकरार रहे बड़े जमींदार कहलाने के, राइट। तो उन्होंने अपनी लैंड नहीं दिया किसी को भी और वो अभी भी उसी के लैंड ओनर्स माने जाते थे। अब सेकेंड जब हम बात करते हैं सीलिंग ऑफ लैंड, सीलिंग ऑफ लैंड का क्या मतलब है? सीलिंग ऑफ लैंड का मतलब है फिक्सिंग अ स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट फिक्स कर देना है लैंड का, ठीक है। सपोज एक पर्सन है, सपोज अ पर्सन ही हैज अ बिग लैंड, उसका बहुत बड़ा लैंड है, तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है उस लैंड को जो इसका ओनर है उसको दे दिया जाएगा। बाकी जो लैंड है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर जो होगा या फिर स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर या फिर स्मॉल फार्मर्स को दे दिया जाएगा। इसका भी मेन मकसद क्या था? ये था कि जो लैंड है इट शुड, the main purpose behind the sealing of the land was to reduce the concentration of ownership in few hands। मतलब जो ओनरशिप है ना वो किसी थोड़े से लोगों के हाथ में ना जाए, राइट। और क्या था? एंड ऑफ कोर्स हम मान ही रहे थे कि हमें इक्विटी लानी है, एंड टू प्रमोट इक्विटी भी ये एक कारण था कि हमने लैंड सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्या इक्विटी ला पाई?
नहीं, इसमें भी हमें इक्विटी नहीं मिला। क्या कारण था? इसमें भी क्या था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी या जो लार्ज लैंड के ओनर्स थे, उन्होंने चैलेंज किया हमारे लेजिस्लेचर को। तो जब उन्होंने चैलेंज किया तो उस वक्त क्या हुआ, जो ये लेजिस्लेचर को इम्प्लीमेंट होना था तो थोड़ा समय लग गया। उस समय के दौरान ये लार्ज लैंड ओनर्स ने क्या किया, अपने ही लैंड को कई रिश्तेदारों में, क्लोज रिलेशंस में उन्होंने बांट दिया, राइट? क्यों? सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द लॉ, ताकि वो लॉ से एस्केप कर सके। और बाद में जिन जिनको बांटा था वो जमीन थी तो उन्हीं की, और वापस उनसे ले ली गई। वो अभी भी ऐसे ही घूम रहे थे जैसे, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और इनफैक्ट उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। दे डिड नॉट बॉदर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन और द लेजिस्लेशन मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक? लेकिन इक्विटी फिर भी नहीं आई। जो इक्विटी हमें देखने को मिली, दैट वॉज ओनली इन द वेस्ट बंगाल एंड केरल। केरल में हम जरूर मान सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स के कारण यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहोगे, इक्विटी आई। उसका मेन कारण क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म था ना, बहुत स्ट्रिक्टली वहां फॉलो किया गया था, राइट? इसलिए दीज टू स्टेट वर एबल टू ब्रिंग गुड इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हाट ऑल गवर्नमेंट डिड, क्योंकि इक्विटी लाना हमारी प्रायोरिटी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इक्विटी लाना है वो हमने पढ़ा थ्रू द रिफॉर्म सिस्टम, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। रेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट आई विल डू इट इन द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।